grandparents. A grandparent's love, a grandparent's love is ever growing. It never grows old. It is strong and deep, filled with memories to cherish and to keep. Today, we have gathered here online to honor and to celebrate the bond of grandparents and grandchildren. So, on behalf of our respected principal sir, vice principal sir, and all the staff members here in primary section, I welcome all our lovely grandparents to this Grandparents' Day celebration. Gracing this occasion of Grandparents' Day, we have our respected principal sir, Mr. Vivek Yadav, with us today. He is a strong believer of imparting value of family and love that are important for child's emotional growth. He also understands and promotes the vital role of grandparents in a child's life. On behalf of all the primary staff members and students, I welcome you, sir, to this occasion. Good morning. Good morning, Anushka. Please keep your mic on mute. Okay. To start our celebration, first and foremost, we welcome our first performer of the event. Please welcome Anushka from 4th C with a short poem on grandparents. नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का बोरा है। मैं नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का बोरा है। मैं कक्षा चौथी स में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हम उनके रात दुलारे हैं। दादा दादी के प्यारे हैं, हम उनके रात दुलारे हैं। उनके बिना है घर अधूरा, उनके बिन परिवार अधूरा। उनकी आंखों के तारे हैं, हम उनके रात दुलारे हैं। हमसे पहले खुद नहीं खाते, पापा के गुस्से से हमें बचाते। खुशियों से भरे फुआरे हैं, हम उनके रात दुलारे हैं। हमसे इतना लाड लड़ाए, परियों की कहानी हमें सुनाए। ज्ञान के खुले पिटारे हैं, हम उनके रात दुलारे हैं। रखे हरदम सर पर हाथ, हर मुश्किल में निभाए साथ। पक्के दोस्त हमारे हैं, हम उनके रात दुलारे हैं। दादा दादी के प्यारे हैं, हम उनके रात दुलारे हैं। धन्यवाद। वंडरफुल। थैंक यू सो मच अनुष्का। आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया एक बहुत ही अच्छी कविता जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हमारे प्यार को बताती है कि हम कितने उनके प्यारे हैं। वो हमें अपने शायद अपने बेटे बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं और हमें उनसे भी ज्यादा अपने पास रखते हैं। आगे बढ़ते हुए इन दिस सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस, नेक्स्ट वी हैव Yashasvi from 4th E presenting a song specially for all the grandparents. Yashasvi, please switch on your audio and video. सभी को नमस्कार और सभी दादा दादी और नाना नानी को हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। मैं यशस्वी कक्षा चौथी ई से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक सुंदर सा गीत लेकर जिसके बोल हैं दादा दादी कितने प्यारे। दादा दादी कितने प्यारे, यशस्वी बेटा, कोई डरने की बात नहीं है बच्चे। ओके, नेवर माइंड। यशस्वी फिर से तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छा गा रही है वो लड़की। अभी आपके लिए फिर से प्रेजेंट करने आएगी। उसको हम वापस से बुलाएंगे आप सबके लिए अपना सॉन्ग गाने के लिए। Meanwhile, we have another talented student over here with us who would like to share her poem of grandparents. I welcome Siddhi from 5th C. Siddhi, please switch on your audio and video, beta. Yes. Good morning, respected principal sir, grandparents, teachers,
and my dear friends. Today, I Siddhi is going to present a poem on Grandparents' Day. Its title is Grandparents. A story time, a nursery rhyme. A story time, a nursery rhyme. The time you spend with me filled me up with happiness. You are everything to me. A heart so full of love and care. I thank the world that you are here. I thank the world that you are here. To always be the one for me, to always be the one for me, that fills my heart with memories, that fills my heart with memories. Grandparents, they are the greatest people in the world. Near or far, wherever you are, always be my star, always be my star. A smiling face, a warm embrace, a smiling face, a warm embrace, a hand to hold when I am cold, a hand to hold when I am cold. The two arms hold me so tight and wish to be good dreams at night, and wish to be good dreams at night. A heart so full of love and care. I thank the world that you are here. I thank the world that you are here to always be the one for me. To always be the one for me that fills my heart with memories. Grandparents, they are the greatest people in the world, near or far, wherever you are, always be my star, always be my star. Thank you and have a great day. So wonderful, Siddhi. All of you saw how beautifully she presented her song, presented her feelings through her poem, and she even dressed up like her grandmother, giving a tribute to her for her love and compassion that she gives her every single day. Now, moving on, grandparents are a delightful blend of laughter, care, deeds, wonderful stories, and love. We all have wonderful memories with our grandparents. To share one such beautiful memory of her grandparents with her, we have Aradhya from 5th A coming up and presenting. Aradhya, please share your happy memories with your grandparents. उनकी बुजुर्ग उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, उनकी बुजुर्ग उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर मेरा सिर झुका तो कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी, मगर मेरा सिर झुका तो जमाने भर हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, शिक्षकगण, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आराध्या यादव आपके सामने अपने दादा दादी एवं नाना नानी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं अपने दादा दादी की पहली पोती हूँ तथा नाना नानी की पहली नातिन, इसलिए दोनों ही जगह मुझे बेपनाह लाड़ प्यार मिला है। पर ये भी सच है कि मैं भी उनसे बेहद प्यार करती हूँ। मेरे दादाजी बहुत सख्त स्वभाव के हैं। जब मैं 3 वर्ष की थी तब मैंने मिट्टी खा ली थी, तब मेरे दादाजी बहुत गुस्सा हुए थे मुझसे और उन्होंने एक चांटा भी मुझे मारा था। और मेरी दादी जी बताती है कि उसके बाद मैंने मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाया। वहीं मेरी दादी जी बहुत ही कोमल व भावुक स्वभाव की हैं। मैं तब वो मुझे कहानियां भी सुनाती हैं। मैं तब जोधपुर आती हूँ तो वह मुझे वो रोती भी है। मेरे दादाजी एवं दादी जी मुझे प्यार से नानू कहकर बुलाते हैं। दादा दादी के अलावा मेरा दूसरा फेवरेट प्लेस है वो मेरे नाना नानी का घर, जहाँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी की जाती है। मेरी नानी जी जब तक मैं उनके पास रहती हूँ मेरी पसंद का खाना भी बनाती हैं। मेरी नानी जी जब मेरी माँ मुझे डांटती है तो उनको भी डांटती है, और जब मुझे माँ अपनी नानी से कोई बात मनवानी होती है तो मैं अपनी माँ नानी से कहकर अपनी माँ को नानी प्लीज माँ को बोलो ना, मेरे नाना जी
बहुत ही शांत स्वभाव के हैं तथा धार्मिक एवं पूजा पाठ करते हैं तथा जब मैं 3-4 वर्ष की थी तभी उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र एवं कुछ श्लोक याद करवा दिए थे। वे मुझे बहुत सारी अच्छी बातें भी बताते हैं तथा अच्छी आदतें भी अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे दादा दादी नाना नानी की बहुत याद आती है। अपनी चीजें वो भूल जाती है कहीं रखकर, अपनी चीजें वो भूल जाती है कहीं रखकर, पर मेरे बीते हुए बचपन की हर बात उन्हें याद है। पर मेरे बीते हुए बचपन की हर बात उन्हें याद है। आई लव यू ग्रैंडपा एंड ग्रैनी, आई मिस यू, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल आराध्या, एंड आई एम श्योर हम सब के पास अपने दादा दादी और नाना नानी की ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी जो हम सबके साथ जरूर बांटना चाहेंगे। आज आराध्या ने हमें अपने बचपन की कहानियां सुनाई हैं, अपने जीवन की, दादा दादी की, नाना नानी की कुछ किस्से सुनाए हैं। आप सबके पास भी ऐसे किस्से जरूर होंगे और आज वो दिन है जब हम उनको इस तरीके के प्यार के लिए ऑनर कर रहे हैं। Grandparents make the world a little softer, a little kinder, and a little warmer for all of us. To your warmth and love, we have here to present a wall of love. A wall of love. We have our very own Divya ma'am presenting it to all of you. Divya ma'am, I request you to please present the wall of love to our grandparents. रब से आपकी खुशी मांगते हैं, दुआ में आपकी हंसी मांगते हैं, सोचते हैं आपसे क्या मांगे, चलो आपसे उम्र भर की मोहब्बत मांगते हैं। Good morning, most respected and honorable grandparents, most reverend principal sir, most respected vice principal sir, respected HM ma'am and my dear friends. आज हम सभी टीचर्स ने आप सबके लिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये दीवार तैयार की है जिसे हम आप सबको एज अ टोकन ऑफ लव डेडिकेट करते हैं। आप सब लोग हमारे परिवारों की जड़ें हैं और यदि हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो इसके पत्ते फल भी मजबूत होंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ों से उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएंगे यही साए उसके काम आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू दिव्या मैम, आपने कुछ शब्दों में और इतनी सुंदर वॉल के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक बहुत ही सुंदर हमारा मैसेज जो है वो पास किया, जो कि हम उनको बताना चाह रहे हैं आज अपने इस प्रोग्राम के द्वारा कि वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज्यादा उनका लव, उनका प्यार जो है इतना ज्यादा वैल्यू करता है। थैंक यू मैम। Moving forward, we have with us presenting a special dance for all the grandparents, Vidhi from 5th C. Vidhi, please switch on your audio and video and show us your special dance. Yes, ma'am.
दादाजी की छड़ी हूँ मैं, दादी पीछे खड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं ना जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, मैं ना जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, कब से पीछे पड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, 16-17 साल की छड़ी है बड़ी कमाल की, पास अगर कोई दुश्मन आए, छड़ी मार कर उसे भगाए। Thank you. थैंक यू सो मच विधि फॉर दैट स्पेशल डांस फॉर ऑल आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और उनकी छड़ी को भी, जो कि उनको भी सहारा देती हैं और देखते देखते हमारे बच्चों को भी बहुत सहारा देते हैं। To show our love for you, we have a small video tributed to you all by our dear Sarita ma'am. To show our special, to show how special you are and what a blessing you are to our children, I request Sarita ma'am to please present the video tribute. Thank you, Kruti ma'am. A very good morning to respected Principal Sir, Vice Principal Sir, HM Madam, staff members, dear students, and most loving grandparents. I will be taking you to a memory lane. Through this small video, this is a tribute to grandparents from all of us. आंगन में झुर्रियां चेहरे की, आंगन में झुर्रियां चेहरे की धूप सी खिल रही थी। अंधेरे में भी उस घर में धूप खिल रही थी। अंधेरे में भी उस घर में खुशियां खिल रही थी। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना परिवार आप सभी ग्रैंड पेरेंट्स का तहे दिल से स्वागत करता है। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, कितना खूबसूरत रिश्ता है। एक बचपन का दूसरे बचपन से, बचपन का हंसी खुशी से, मासूमियत का संस्कारों से। आज की आपदा भरी जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज़ है वह है वक्त, जो कम मिल पाता है। आपके पास, आपके साथ बच्चों के लिए वक्त और प्यार का खजाना है। बच्चों के लिए वो आपका कभी शिक्षक, कभी माता पिता बन जाना, वो हमारे साथ खेलना, वो हजारों कहानियाँ सुनाना, वो आपका हमारे लिए यूँ परवाह करना, वो कई बार मम्मी पापा की डांट से बचाना, बचपने में हमारा यूँ साथ देना, कभी गोद तो कभी कंधे पर ले लेना, वो कुछ पलों में वर्षों का अनुभव दे जाना, वो हमें मासूमियत के साथ समझदार कर जाना, आपका यूँ हर बात मेरी सुनना और समझ जाना, यूँ हर गलती पर अपनाना, यूँ पीठ थपथपाना और गर्व का एहसास दिलाना, वो दादी की लोरी, वो दादा के किस्से, वो नानी की लोरी, वो नाना की किस्से, हर बचपन के सबसे खूबसूरत हिस्से। जब बड़े होकर बुजुर्गों से फिर से मुलाकात हो गई, कुछ इस तरह खूबसूरत मेरी शाम हो गई। दूर बैठे अकेले चाय पीते
देखती थी जिन्हें, फुर्सत में उन्हीं से दुआ सलाम हो गई। गंभीर दिखते थे उलझे से अखबारों में, क्या खूब एक बचपन से पहचान हो गई। चंद लम्हों के बदले जिंदगी का तजुर्बा पा गई। बेशकीमती दुआएं जो मेरे नाम हो गई, बेशकीमती दुआएं जो मेरे नाम हो गई। बच्चों के कुछ मैसेजेस उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। I love you and I miss you, grandparents. Please जल्दी से हमारे पास आ जाओ, कृष्णा। आप अतुल्य हैं। यू आर इनक्रेडिबल। थैंक यू। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। Thank you, Sarita ma'am. That was one of the most touching, emotional, and heartwarming presentation for today. And I'm sure that all the grandparents, all the parents, and all the students who are watching this felt the love, the compassion which was shown in this video. Thank you so much. Thank you, Kirti ma'am, and thank you all the grandparents. It is true that a grandparent is a little bit of parent, a little bit of teacher, and a little bit of best friend. Near or far, they are always holding us in their love and in their arms. I thank all the grandparents for coming out today to grace this occasion to celebrate the day for you. Thank you so much, grandparents. अब मैं आप ही में से कुछ दादा दादी नाना नानी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह आएं और अपने कुछ अनुभव हमारे साथ यहाँ साझा करें। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगी श्री भंवरलाल जी भाटी, जो कि ग्रैंडफादर हैं दिया भाटी 4th D की बच्ची के। भंवरलाल जी भाटी, क्या आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं? हाँ जी। जी सर, प्लीज आप अपने विचार हमारे साथ जरूर बांटिए। हाँ जी, हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर प्लीज हाँ आप जी। कैमरा अपने तरफ कर लीजिए। आपकी पोती हमें जरूर दिख रही है मगर आप नहीं दिख रहे हैं। जी जी सर। अब दिख रहा है आपको? जी सर, जी सर। हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर आप को हमारा ये प्रोग्राम जो कि आप सबके लिए हमने यहाँ छोटा सा एक प्रोग्राम रखा, वो कैसा लगा और आपका अनुभव अपने बच्चों के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में कैसा रहता है, वो हम जानना चाहेंगे कुछ शब्दों में। जी, आपका प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लगा और पोता पोतियों के साथ हम रह के में बहुत खुशी होती है और किसी तरह का काम फैसला हो जाता है, पूरा जाकर हमारा दिल खुश हो जाता है। उनके बिना हमारा घर सुना सुना लगता है। हम उनका इंतजार करते हैं कि वो हमारे पास कब आए। जी सर, लॉकडाउन में तो आपके पास बच्चे पूरा टाइम बिता रहे होंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? लॉक टाइम हमको जो वर्कशॉप जाना पड़ता था, नहीं लॉक टाइम तो बहुत काफी टूट में नहीं रहा था, मतलब 1.5 महीना 1.25 महीने नहीं रहा था। नीचे मेरा वर्कशॉप है, ऊपर मेरा मकान है, हम नीचे वर्कशॉप रहते हैं। जी सर, बहुत बहुत जी सर, आप कुछ और बोलना चाहेंगे सर? आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हम बता देंगे। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, हमारे साथ ये दिन बिताने भाटी के साहब से लिए। मैडम मैं क्षमा चाहूंगा, भाटी साहब से मैं पूछना चाहूंगा कुछ। जी सर, जी सर।
भाटी साहब, आपके पास पूरे उम्र का अनुभव का खजाना है। मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ भाटी साहब, और आपके पास पूरा उम्र और अनुभव का एक खजाना है। और आप युवा पीढ़ी को, हमारे शिक्षकों को भी और बच्चों को भी क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे जिंदगी जी जानी चाहिए? जिंदगी में क्या गलतियां इंसान करता है? इतनी लंबी उम्र आपकी हो गई है, और किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और क्या क्या चीज अच्छाई है इस जिंदगी में, उन अच्छाइयों में कैसे कैसे साथ जिया जाए, वो आपसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर नहीं बता सकते। आप हमारे से भी सीनियर हैं। हाँ जी, ऐसी बात है कि जब भी समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा टाइम परिवार और बच्चों के साथ बिताना चाहिए। जब वेरी हम काम हो गए हैं तो बच्चे थे, हम बच्चों का इंतजार करते हैं और हमारे पुराने तजुर्बे हैं बताते हैं और उनको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। आगे तुम काम करोगे तुम्हें कितने तरह से सफलता मिलेगी। और कम बहुत बढ़िया लगा भाटी साहब आपकी बात सुन के कि जब भी टाइम मिले समय निकाल कर बच्चों को समय देना और उनका मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। ये बात हम सब शिक्षकों के लिए भी और सारे अभिभावक जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। भाटी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बच्चों के लिए समय निकालो, क्योंकि सब कुछ इन बच्चों के लिए ही है, और इनका मार्गदर्शन अवश्य करें। इनको ऐसे नहीं छोड़ दें कि सिर्फ स्कूल के भरोसे हैं या टीचर्स के भरोसे। माँ बाप को भी समय निकालना होगा, दादा दादी नाना नानी सबको बच्चों को समय देकर इनको मार्गदर्शन करना होगा। थैंक यू भाटी साहब। मैडम प्लीज गो अहेड। जी सर, बिल्कुल सही। और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में तो माँ बाप दोनों जहाँ पे वर्किंग हो जाते हैं, कई बार दादा दादी भी वर्किंग हो जाते हैं, हम लोगों के पास शायद टाइम नहीं निकल पाता। बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हम जो आप भी काम कर रहे हैं, हम बच्चों को ही वक्त नहीं दे पाते। बहुत अच्छी बात शेयर करी भंवरलाल भाटी जी ने। धन्यवाद आपका सर। अगला इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी श्री गोविंद राम जी को। ये यशवर्धन चित्तारा 5th ई के नाना जी हैं। श्री गोविंद राम जी। आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ हेलो। रही है, मगर हमें सुनाई दे रहा है थोड़ा। ओके ओके। बात रखना आदरणीय प्रिंसिपल साहब, समस्त स्टाफ मेंबर, इसी प्रोग्राम में दादा दादी नानी को मेरा सादर अभिनंदन करते हैं। के समस्त स्टाफ और आभार प्रकट करना चाहूँगा इस तरह का प्रोग्राम रखे, जो एक की है नहीं है, फिर भी आपने प्रोग्राम रख के दादा दादी और नाना नानी के प्रति बच्चों का जो भाव दर्शाया है, उससे मुझे बड़ी खुशी है। एक बात मैं करना चाहूँगा, बच्चों को जो है, जो बच्चे हैं, सर मैं आपको थोड़ी देर बस रोकना चाहूंगी सर। आप जो भी बता रहे हैं हम सब उसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, मगर आपकी आवाज जो है शायद नेटवर्क की वजह से कट रही है काफी। जी मैम जी। तो आपके घर में अगर कहीं ऐसा आ रहा हो जहाँ अच्छे से नेटवर्क आ रहा हो, तो कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज वहां से अपना को दीजिए। स्कूल में क्या है कि जोधपुर में सिंगरौली में हूँ, समस्या है ये मेरे पास आया हुआ है, बनारस में आया हूँ, सिंगरौली मध्य प्रदेश में हूँ, बनारस के पास में। तो हो सकती है कि जी सर। जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। यशवर्धन बेटा, प्लीज अपने नाना जी को शेयर करने दीजिए। यस मैम। यस बेटा।
शुड आई स्पीक अगेन मैम? जी सर, प्लीज सर, अब आप काफी क्लियर हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। अब आप आइए प्लीज। जी सर। थैंक यू प्रिंसिपल साहब, मैं आपका बहुत और आपके स्टाफ का बहुत बहुत मतलब आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस मौके पर इस तरह की जो प्रोग्राम रख के एक नई ताजगी हम लोगों को प्रदान की है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आपने हमें जो बुलाया है तो आप लोगों का बड़ी अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। रही बच्चों के पोते पोती और जो नाती वगैरह होते हैं, वो एक्चुअल में हमारे खुद के बच्चों से ज्यादा प्यारे होते हैं, वो आप अब समझते हैं और समझ जाएंगे, आने वाले आपके भी पोते पोती होंगे तो दोस्त ज्यादा होते हैं एक्चुअल में। आपको बता दें कि सबसे बढ़िया दोस्त जो है हमारे पोते पोती और नाता नातिन होते हैं। उससे क्या होता है कि हम कभी भी इनके साथ शेयर करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इस मतलब आजकल के जमाने ज्वाइंट फैमिली तो रही नहीं है प्रिंसिपल साहब की, हर चीज को शेयर करते हैं। कभी कभी मिलना होता है तो बच्चों के साथ इस तरह की शेयर करते हैं तो काफी आनंद आता है। अभी यशवर्धन मेरे पास हम आए हुए हमारे छोटे बच्चे के पास सिंगरौली मध्य प्रदेश में, वो कोल इंडिया में है, तो भी उसके साथ शेयर कर रहे हैं हम, तो काफी आनंद आ रहा है। इसके साथ मस्ती भी करते हैं, डांटने में भी आनंद आता है तो उसको प्यार करने में आनंद आता है। उसको कई तरह की चीजें बताते हैं। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो एक अनुशासन, बड़ों के प्रति रिगार्ड, जो आजकल थोड़ा हमें भास हुआ है नैतिक मूल्यों का समय के साथ साथ, उस चीज को हम अगर बच्चों को और कहे कि जैसा आप कर रहे हैं, मेरे को तो बड़ी खुशी है कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं कि बच्चों को कड़ी मेहनत, अनुशासन, बड़ों के प्रति रिगार्ड, और हर बार जो है आप लोगों का बहुत बड़ा रहता है बच्चों के लायक बनाने में, क्योंकि हम भी बने हैं तो आप लोगों जैसे गुरुओं के प्रति श्रद्धा रख के बने हैं, और गुरुओं की वजह से ही हम आज जो है इस मुकाम पे पहुंचे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को भी ये संस्कार दें। और इतने में आपसे जो है फिर धन्यवाद प्रिंसिपल, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं इतना कहकर अपना स्थान एक बार पुनः धन्यवाद आपको इस तरह के प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच सर। हम भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं आपका कि आप जो वैल्यूज़ बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो टीचर्स भी देख सकते हैं अपने बच्चों के अंदर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद परिवार की नींव इतनी स्ट्रांग रखने के लिए। आगे हमारी एक छोटी सी बच्ची यशस्वी, जो कि पहले अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, वो अपना सॉन्ग जो है दादा दादी के लिए यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहती हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यशस्वी टू प्लीज कम अप एंड गिव दिस प्रोग्राम अ ब्यूटीफुल एंडिंग नोट बाय हर ब्यूटीफुल सॉन्ग। सभी को नमस्कार और सभी दादा दादी को हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। मैं यशस्वी कक्षा चौथी ई से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक सुंदर सा गीत लेकर, जिसके बोल हैं दादा दादी कितने प्यारे। दादा दादी कितने प्यारे, सारे जग से है न्यारे। दादा दादी कितने प्यारे, सारे जग से है न्यारे। जब भी हम पढ़ने जाए बस्ता लेकर पीछे आए, जब भी हम पढ़ने जाए बस्ता लेकर पीछे आए। दादा दादी कितने प्यारे, सारे जग से है न्यारे। दादा दादी कितने प्यारे, सारे जग से है न्यारे। पापा गुस्से में जब आए दादा हम पर प्यार जता, पापा गुस्से में जब आए दादा हम पर प्यार जता। दादी भी कुछ कम नहीं होती, चोट लगे तो जोर से, दादी भी कुछ कम नहीं होती, चोट लगे तो जोर से रोती। दादा दादी कितने प्यारे, सारे जग से है न्यारे। दादा दादी कितने प्यारे, सारे जग से है न्यारे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच यशस्वी। आप पहले मुझे नहीं पता क्यों डर गए, आप तो बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं हम सभी दादा दादी और नाना नानी के लिए। थैंक यू सो मच यशस्वी। मैम वो कॉल आ गई थी बीच में। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू। ओके, सो इसी के साथ वी हैव reached the end of our program. Thank you to all the grandparents. But before we go, we would really like, and I would like to request our worthy principal sir to please express his thoughts, his views, and give us our blessings on this occasion of Grandparents' Day. Sir, please. थैंक यू मैम। परम सम्माननीय हमारे बच्चों के दादा दादी, नाना नानी जी, ज्ञान के शिखर विद्वान शिक्षक गण, आप कोई अभिभावक भी जुड़े हुए हैं तो माननीय अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, ये अत्यंत खुशी की बात है कि आप सब छोटे छोटे बच्चों ने लैपटॉप या मोबाइल से इस तरह से मीटिंग अटेंड करके और अपने दादा दादी और नाना नानी से हम सबको मिलवा दिया है। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। और छोटी उम्र में आपने तकनीकी का यानी टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा प्रयोग सीख लिया है। आप लोग गूगल मीट से जुड़ रहे हैं, दादा दादी नाना नानी को जोड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं और आप लर्निंग टीचिंग के यानी शिक्षण अधिगम का जो क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए अपनी पढ़ाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, कई बच्चों ने आज कविताएं सुनाई, डांस दिखाए और ये बताया कि आज ऑनलाइन शिक्षण के समय पे भी आप घर में बैठे हुए भी कितने सक्रिय हैं, आप में कितनी ऊर्जा है और आप में कितनी कार्य करने की क्षमता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ये जो जितना आप सोच सकते हैं उतना आकाश आपका है, जितना आप सोच सकते हैं उतनी सोच आपकी जाती है, वहां तक आप जा सकते हैं। जहां तक आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया, नहीं सोचा, वो आप लोग कर सकते हैं और वो आप लोग करके दिखाएंगे। आप में से ही आगे जाके कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेंगे, कोई व्यापारी बनेगा, कोई अपना देश की रक्षा के लिए सिपाही बनेगा, कोई कार्य करने के लिए कोई हवाई जहाज उड़ाएगा, कोई रेल चलाएगा, कोई बस चलाएगा। इस देश के सारे काम आप लोगों को संभालने हैं, छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़ा कार्य आप लोगों को करना है। तो सभी को ये बात का ध्यान रखना है कि कार्य कोई छोटा नहीं होता है, उस कार्य करने करने का तरीका छोटा बड़ा होता है। अगर आपको जो भी जिंदगी में कार्य मिले उसको आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आप बहुत बड़े इंसान हैं। और अगर आपको जो भी कार्य मिला, चाहे छोटा सा कार्य मिला, अगर आप उसको मतलब कार्य आपको बड़ा मिला या छोटा मिला लेकिन ढंग से नहीं किया तो फिर आप सफल इंसान नहीं। तो मतलब अब हमारी सबकी जिंदगी है ना, में सबका हमारा रोल शोले फिल्म की तरह है कि हर कैरेक्टर का अपना छोटा छोटा रोल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम सबको उस रोल को प्ले करना है और हम सबको अपनी जिंदगी में जो जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसको अच्छे से निभाना है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम सब लोगों को इंसानों और पशुओं में फर्क किस बात का है। इंसान और पशुओं में फर्क एक ही बात का है कि हम सब लोग समाज में रहते हैं और अपने बुजुर्गों के अनुभव से अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं इन्होंने अपनी पूरी उम्र गंवाई है और इस पूरे समाज का अनुभव लिया है और वो अनुभव हमें 5 मिनट में इनके साथ बैठ के मिल जाता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अपने दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्ग हैं, इनका बड़ा सम्मान करिए क्योंकि इनमें हमेशा आपका फायदा है। आप इनके चरण वंदन करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं तो इनके जो आशीष निकलते हैं वो इनके जीवन भर की जो ईश्वर से की गई प्रार्थना है उसका फल निकलता है आपके लिए। साथ ही साथ आपको बैठे बैठे पूरी उम्र का, यानी ये दादा दादी नाना नानी कोई 60 साल के, कोई 70 साल के, कोई 80 साल के हैं, 80 साल तक इन्होंने जो काम किया है उससे जो निष्कर्ष निकाला है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस से जो निष्कर्ष आया है, उस निष्कर्ष को आपको 5 मिनट में बता देते हैं कि बेटा जिंदगी में ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, इनको प्रणाम करना, इनकी सेवा करना, इनका ख्याल रखना, इनके खाने पीने का, इनकी दवाई का, इनके देख रेख करना, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतना सब काम करके भी आप सुबह शाम इनको नमस्कार करें, इनका वंदन करें
आप इनको प्रणाम करें और इनके साथ बैठ के इनकी सेहत का ध्यान रखें, इनके खाने का ध्यान रखें। आप जब खाना खाएं उससे पहले दादा दादी नाना नानी को खाना मिला है कि नहीं ये सुनिश्चित करें। आप दवाई देते समय भी ध्यान रखें, कब दादा दादी नाना नानी को दवा दी जानी है ध्यान रखें। आपके माता पिता हो सकता है आपके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए कमाने में व्यस्त हों, पर प्यारे बच्चों आपको समय निकालना है अपने दादा दादी नाना नानी जो भी आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो बीच बीच में समय निकाल के उनके पास मिलने जाने का समय निकालना है और वहां जाके उनकी सेवा करनी है, क्योंकि जितनी सेवा करोगे उतना उनसे आपको अनुभवों का लाभ मिलेगा। जितना पास रहोगे सेवा करोगे उतनी उनकी आत्माओं से आपको दुआएं मिलेंगी। वो ये सब चीजें काम करती हैं, इस बात को मान के चलिए। और आप सभी जब इस प्रकार से अपने दादा दादी नाना नानी माता पिताजी का आशीर्वाद लेके अपने गुरुजनों के साथ आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह अपनी जिंदगी में वहां तक जा पाएंगे जहां तक आपने सोचा है। आपको जिंदगी में कोई पीछे नहीं रख सकता, बस सिर्फ आप बुजुर्गों का सम्मान करिए, शिक्षकों का सम्मान करिए और समय पे अपना काम ईमानदारी से करिए। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास के खेल कूद में खूब भाग लीजिए, उसकी पढ़ाई में खूब भाग लीजिए, उसके लिए जो कोई कार्यक्रम आते हैं आपके टीचर कहते हैं तो उसमें भाग लीजिए। और भाग लेते हुए आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को एक्टिविटी में भाग लेंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप अच्छे से बोलने लगेंगे, आपको पब्लिक में बोलना आएगा, आपको नेतृत्व आएगा। और इन सब गुणों से युक्त होकर और विनम्र रहेंगे तो आपको सारी चीजें अपनी जिंदगी में मिलती जाएंगी। आप ही के इस विद्यालय से आपको जानकर खुशी होगी कि आपके सीनियर बच्चे जो 12th करके निकलते हैं वो बच्चे अभी पूरे स्टेट में स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में, टैलेंट एग्जामिनेशन में फर्स्ट आते हैं। आपके स्कूल का आपका एक सीनियर भैया पिछले साल नीट परीक्षा में पूरे इंडिया में केवीएस के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। आपके यहाँ के भैया दीदी लोग मेडिकल में जाते हैं, आईआईटी में जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं। आपके यहाँ से पिछली बार 65 भैया दीदी लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स में अपना परचम लहराया है। यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। और एक ही खेल में नहीं, कोई दौड़ में है, कोई हैमर थ्रो में है, कोई डिस्कस में है, कोई जूडो में है, कोई बॉक्सिंग में है, कोई स्केटिंग में है, कोई कबड्डी में है, तो कोई हैंडबॉल में है, या एसजीएफआई नेशनल लेवल तक खूब सारे बच्चे जाते हैं। अगर आप भी उनकी तरह से विनम्र रह के उनका अनुसरण करेंगे तो आप सब लोगों को वहां इनके ये तो पास होके निकलते जाएंगे। अब आपका नंबर है तैयारी करके आगे आने का, आप सब लोग आ पाएंगे। आपके स्कूल की एक दीदी जो अभी 10th क्लास में आ गई हैं, वो दीदी आपकी कला उत्सव में नेशनल लेवल पे गई हैं और वहां पे उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। केवीएस स्तर पे उनको द्वितीय पुरस्कार मिला, फिर कला उत्सव में गई एनसीईआरटी के द्वारा और फिर वहां से इन सब उनकी पढ़ाई और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई करने का मौका उस बच्ची को मिला। आपकी जो सीनियर बच्ची हैं उनको मिला। आप उनका नाम जानते हैं? कोई बता सकता है मुझे? सर ईशा दीदी। ईशा दीदी, वेरी गुड। ईशा दादीच ने इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आधे घंटे के लगभग उनकी अगवानी की और पूरी गैलरी में उनको घुमाया और उनका चयन उनके राष्ट्रीय स्तर पे कला उत्सव में उसकी परफॉर्मेंस और उनके पढ़ाई की परफॉर्मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो मतलब आप सब भी, आपके सामने देखो आपके सीनियर बच्चे लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप सब भी ऐसा सब कर सकते हैं। आप सब भी इस प्रकार से आपका आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो आप सभी बच्चों को भी इसी प्रकार से पढ़ाई करते जानी है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखनी है, पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना, किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ साथ आपको विनम्र बनना है। आपको लड़ाई झगड़े से, गुस्से से, इनसे दूर रहना है। आपको अपने दादा दादी नाना नानी, टीचर्स का, शिक्षक गणों का, इन सब का आदर करना है। इन्हीं का नहीं, समाज में जब भी कभी आपको कहीं बस में, ट्रेन में बड़े बूढ़े बुजुर्ग मिले उन सबका आपको आदर करना है, उनको नमस्ते करना है और उनको जगह पड़ने पर उनकी सहायता करनी है। सीट देनी हो तो सीट देनी है। उनको कोई सामान के उठा के रखने की आवश्यकता पड़ती है और आप बस ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग आदमी साथ है तो उसको आपको जरूर मदद करनी चाहिए। इसी प्रकार से जब आप मदद करेंगे तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और उन दुआओं का परिणाम रहेगा कि आप जिंदगी में बहुत सफल होंगे। लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और आपके अच्छे के लिए कार्य करेंगे। लोग कहेंगे कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बड़े संस्कारी हैं, तो लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और एक समाज में ऐसा वातावरण बनेगा जिससे कि आप सब अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे। अभी आपकी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। 21 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर से आपकी 22 दिसंबर से आपकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक। इस टाइम पे आपको 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज का जो ध्यान रखना है वो है अपने स्वास्थ्य का।
बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, ज्यादा ऊर्जा होती है, थोड़े लापरवाह होते हैं, ओढ़ने पहनने का ध्यान नहीं रखते। अब अचानक सर्दी बढ़ गई है, अपनी सर्दी से बचने के लिए अपनी स्वेटर टोपा वगैरह पहन के, जूते मोजे वगैरह पहन के अच्छे से रहें। अब ऐसा भी नहीं करना है कि 2-2 4-4 दिन वही जूते मोजे पहन के रहें। साफ कपड़े रोजाना बदलने, नहाना धोना और अपनी शारीरिक क्रियाओं को भी करना है। अच्छे से साफ सफाई से रहिए, नहाइए धोइए और डेली अपने शरीर का ठंड से बचाव का ध्यान रखिए। और अपने दादा दादी नाना नानी का भी ख्याल रखिए साथ में, दोनों वो आपका ख्याल रखेंगे, आप उनका ख्याल रखिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि अपनी पढ़ाई को नियमित रखना है। अब तक जो ऑनलाइन क्लासेज में आपको पढ़ाया गया है, छुट्टी में सबको 20 दिन में पूरा रिवीजन कर लेना है। डेली एक एक चैप्टर, कम से कम 2 विषय के 2 चैप्टर करने हैं। हमारे सारे शिक्षक गण भी जुड़े हुए हैं प्राथमिक विभाग के, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चों को हॉलीडे होमवर्क जरूर अलॉट कर दें, ताकि इनका पूरा कोर्स रिवीजन हो जाए इनका। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इन 20 दिनों में आपको अपनी सेहत के लिए, एक्सरसाइज, वार्म अप के लिए, रनिंग के लिए, इन सब के लिए भी समय देना है। ऐसा ही नहीं कि खा खा के मोटे हो रहे हैं और घूमा फिरा भी नहीं जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको भाग दौड़ भी करनी है, रनिंग एक्सरसाइज भी करनी है, बट कोरोना का ध्यान रखते हुए। आप मुंह पे थोड़ा ऐसी जगह पे एक्सरसाइज करें जहां पे आपको कोरोना ना हो, मास्क लगा के रहें और लोगों से मिलते समय दूर से बात करें। आपको पता है ना, SMS, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्किंग एंड S फॉर सैनिटाइजिंग। 3 चीजों का ध्यान रखना है। बार बार हाथ धोने या सैनिटाइज करना है, मास्क लगा के रखना है और दूर से बात करना है। आप लोगों को अपने आसपास जहां पे भी खुली जगह मिलती है वहां पे थोड़ा भाग दौड़ भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, घर में छत पे करिए, कहीं पे भी करिए, जहां जगह मिलती है कमरे के अंदर करिए, एरोबिक्स करिए, है ना। ये सब अपने बॉडी को फिट रखने के लिए जरूरी है। और डेली जिनके भी घर में साथ में दादा दादी नाना नानी है, उनके साथ बैठ के 1 घंटे का समय कम से कम बैठ के उनसे बात करके बिताना है। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। और जिनके दादा दादी नाना नानी जोधपुर में साथ नहीं रहते हैं, उनका प्लान अगर उनके पास जाने का बने तो जरूर जाइए, सेफ्टी के साथ जाइए, सारे कोरोना की चीजों का ध्यान में रखते हुए जाइए और दादा दादी नाना नानी से मिल के आइए। उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप भी कभी दादा दादी नाना नानी बनेंगे और अगर आपसे कोई मिलने नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी बुरा लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, इनसे मिलते रहिए, इनसे और पढ़ाई भी करते रहिए, जीवन का ज्ञान सीखते रहिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं ये आश्वस्त करता हूँ समस्त दादा दादी और नाना नानियों को कि आपके बच्चे एक बहुत अच्छे और एक अच्छे शैक्षणिक माहौल वाले स्कूल में हैं। हम सब लोग आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, पढ़ाई लिखाई और संस्कार देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद और साथ हमें मिलता रहेगा तो इन बच्चों के चरित्र निर्माण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त पधारे हुए दादा दादी नाना नानियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और हमारी सारी टीम जिन्होंने ऑनलाइन बच्चों को तैयार करके जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत ही सफल और सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, इस सब के लिए इनको भी बधाई देता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। वो सभी बालक जिन्होंने, बालिकाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूं। और उनके लिए भी मैं मैडम से निवेदन करूंगा, एक एक चॉकलेट और एक एक पेन इनका रखें। जैसे स्कूल खुलते हैं तो सबसे पहले इन बच्चों को, जिस भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उन बच्चों की लिस्ट बना के रखें और उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के दें। उनकी चॉकलेट और पेन जो इसमें हमारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है वो भी इन बच्चों को अवश्य दें इनाम के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आगे आने वाले हॉलीडेज की शुभकामनाएं और सभी दादा दादी नाना नानियों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमन, अभिवंदन, अभिनंदन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम श्योर कि ये बातें सुनकर सभी बच्चे, दादा दादी और दादा नानी बहुत खुश हुए होंगे। आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने माइक ऑन कर रहे हैं और कुछ बोलना चाहेंगे, पर मैं निवेदन करूंगी आपसे। एक्सक्यूज मी जी मैम, बेटा। मैं अपने दादा दादी और दादी के लिए 4 शब्द बोलना चाहती हूँ। आप 4 शब्द बोलना चाहते हैं? जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रिंसिपल सर से, इफ यू अलाउ सर। यस मैम, प्लीज। जी, ओके बेटा। मेरी दादी बहुत अच्छी है। मेरी दादी मैं उनके बिना रह नहीं सकती। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती है। जब मेरे लगती है, जब जोर जोर से रोते हैं। मेरी दादी बहुत अच्छी है। मेरी दादी प्यारी है।
हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सौभाग्यशाली हो कि आपके साथ दादी हैं। और मैं अभागा था कि मैंने कभी अपनी दादी को देखा नहीं, तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जिनकी दादी है और उनको इतना प्यार करती है। शाबाश, वेरी गुड ज्योति। आइए बच्चे, विराट टाक कुछ कहना चाह रहा था, बताइए बेटा, आप भी बोल लीजिए। सर मैं अपनी दादी सर के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। मेरी दादी रोज ना पाठ पूजा करती है और ना हर एक धर्म का पालन करते हैं और ना वो ना 32 इयर्स से ना पाठ पूजा करते हैं और हर सैटरडे को वो ना रामायण का पूरा पाठ करते हैं और साथ में कभी कभार हम भी कर लेते हैं और वो हमको हनुमान चालीसा भी सिखाते हैं। वेरी नाइस, ये बड़े अच्छे संस्कार, इनको सीखिए आप दादी से, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। सर मैं भी बोलूं मोहम्मद? बोलिए मोहम्मद, बोलो बेटा। My name is Mohammad Rihan. I study in class second B. मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कार्ड बनाया है। मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, बोलो। My grandparents card and she. My grandparents also play with me and they also take care of me and my family. My grandparents are my youth, my teacher and also they are my friend too. I love you, my grandparents Adi Mohammad Amdan ji, Hajan Jia Bano. Thank you. आपके दादा दादी नाना नानी साथ हैं तो हमें दिखाएंगे उनकी शक्ल। सर मोहम्मद मैं तन्मय शर्मा मैं दादी के लिए 4 लाइनें बोल लो। अब ये लास्ट है। लास्ट जी सर। बेटा बच्चों सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम जानते हैं हम अपने दादा दादी नाना नानी को बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पे सब बोलना चाहते हैं, तो किसी और दिन हम फिर से ऐसा एक मीटिंग जो है अपने क्लास के साथ ऑर्गेनाइज कराएंगे जहां आप अपने विचार जो है वो बोल सकते हैं। तो तन्मय के बाद मैं कृपया करके सबको निवेदन करूंगी कि कृपया करके आप अपना माइक ऑन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तन्मय बेटा प्लीज बोलिए। जब मेरे लगती है दादी जोर जोर से रोती है, जब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, जब तक मेरी दादी भी खाना नहीं खाती है। भाई आप बगल से मत बोलिए, जो पेरेंट है बगल से बच्चे को मत सिखाइए। तन्मय शर्मा के इनको बोलने दीजिए अपने आप, अपने मन से। तन्मय बेटा आप अपने मन से बोलो जो बोलना चाहते हो, किसी के कहने से मत बोलो। हाँ ये वही बात, वेरी गुड। हमने आपको बोलना सिखाया है ना मम्मी पापा और स्कूल वालों ने, तो वैसा बोलिए आप, जो आपके मन में आ रहा है वो बोलिए। दादी दादी कितनी प्यारी। वेरी गुड, दादी बहुत प्यारी है, शाबाश। दादी जब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, दादी भी खाना नहीं खाती है। वेरी गुड। सबसे पहले खाना मुझे ही खिलाती है। आप आज से आपको एक काम करना है, आपको दादी के साथ ही खाना है और आप भी दादी को खाना खिला के फिर साथ साथ खाओगे, ठीक है? यस मैम, यस सर। ओके बेटा, वेरी गुड। दादी के साथ हो सके तो एक थाली में या दो थाली भी हो तो पहले दादी को खिला के साथ में फिर दोनों दादा दादी बेटे एक साथ बैठ के खाओ, बड़ा मजा आएगा। यस सर। थैंक यू तन्मय। बोलो कौन बोल रहा है बेटा? एक लास्ट बोलो सर। यस बेटा, बोलो। मैं अपने दादी से बहुत प्यार करता हूँ और ना दादी मैं जब सोता हूँ रात में ना, दादी मुझे भगवान जी की बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाती है और जब मैं ना दादी मुझे ना सुबह भगवान जी को जन्म देने के लिए बोलती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोलती, इनकी बात माना करो, शाबाश। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। ठीक है, नेहा राजपूत कुछ बोल रहे थे बेटा, फिर लास्ट करते नेहा के बाद। जी सर। नेहा राजपूत। अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है आप कर लीजिए। हाँ बोलिए। सबसे न्यारी है, मुझे बहुत अच्छी
अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है जिससे हमें शिक्षा मिलती है, वेरी प्रेरणा गुड, मिलती है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा, थैंक यू। आप जिस तरह से आप सब बच्चे अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं, पता लग रहा है कि आप अपने दादा दादी को, नाना नानी को कितना प्यार करते हैं और वो आप लोगों के ऊपर कितना ज्यादा अपना प्यार जो है वो बरसा रहे हैं। अभी वक्त हमारे पास कम है तो हम सबको नहीं अब बोलने को यहाँ पर दे सकते, तो मेरा बहुत बहुत आपसे मैं माफी चाहूंगी। और अंत में मैं बुलाना चाहूंगी हमारी रिस्पेक्टेड एचएम मैडम को, श्रीमती सुमन सोरल मैम, कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानीय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे सभी बहुत ही प्यारे शिक्षक साथी व सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स टू यू ऑल। आप सभी को ग्रैंड पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सच ही कहा है कि उस घर की नींव कभी कमजोर नहीं हो सकती जिसकी छत को सहारा उनके बुजुर्ग देते हैं। दादा दादी, नाना नानी बच्चों के मार्गदर्शक ही नहीं, उनके दोस्त भी होते हैं और उनके सानिध्य में रहकर जो संस्कार वो बच्चे सीखते हैं वो जीवन पर्यंत उनके साथ हमेशा रहते हैं। और आप सभी के बीच आज स्वयं को पाकर हम सब बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं, बेहद हर्षित हैं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी सर्वप्रथम हमारे प्राचार्य महोदय का, जिनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम हेतु हमें मिला और हमेशा हर कोई भी कार्यक्रम हो हमेशा उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और हमेशा ही वो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। सादर आभार उन सभी ग्रैंड पेरेंट्स का जिन्होंने वर्चुअल मोड पर हमसे जुड़कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें बहुत अच्छा संदेश दिया। Hearty thanks to all my dear staff members who coordinated so well in a very short span of time to make this program a very, very successful one. And in the last but not the least, thank you dear participants and thank you dear children for performing so well. आज का कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, बहुत कम समय में आपने इस कार्यक्रम की तैयारी की और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको परफॉर्म किया। अभी बहुत सारे बच्चों ने अपने उद्गार सामने रखे, बहुत से बच्चे अपनी बात कह नहीं पाए, तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगी कि आज आप एक फोन अपने दादा दादी को जरूर लगाइएगा। दादा दादी, नाना नानी को आज सभी बच्चे फोन जरूर करेंगे और उनको हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे बोलेंगे, उनके साथ अपने जो भी आपके विचार हैं वो जरूर बांटेंगे। हमने एक ई कॉम्पिटिशन भी रखा है, तो उसमें आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर ई ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं, वो ग्रीटिंग कार्ड्स आप अपने दादा दादी, नाना नानी को भेजिए। अगर आप कंप्यूटर पे डिजाइन नहीं कर सकते तो कुछ बच्चों ने भी हाथ से भी बना के दिखाए हैं, वो भी ग्रीटिंग कार्ड आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जरूर भेजेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद। And I pray to Almighty God to bless a very long life, a happy and healthy life to all our grandparents. Thank you so much, everyone. थैंक यू सो मच सुमन मैम। यस, जैसा कि सुमन मैम ने आप सब बच्चों को बताया, हमने ई कार्ड का एक एक्टिविटी जो है इसके बाद फिर से आप लोगों को हम मैसेज करेंगे। हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि आप ई कार्ड कंप्यूटर पे या मोबाइल पे एक बहुत ही सुंदर एक कार्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बनाइए। अगर वो आपके साथ रहते हैं या आपसे दूर रहते हैं, अपना प्यार उनको जरूर जताइए। आप जो यहाँ हमारे साथ बांटना चाहते हैं वो उनको अपना प्यार बताइए, उनको कॉल करके बताइए, चाहे उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करके बताइए, उससे उनको ज्यादा खुशी होगी। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू